Hello students, welcome back to inverse trigonometric function. In this video, we are going to do some questions depending on the domain, codomain, graphical transformations and inequalities. So let's start with some questions of domain of related to inverse trigonometric function. First question, under root sin inverse 2x plus pi by 6. फिर सेकेंड में मॉड है, थर्ड में कॉट इनवर्स एंड कॉस इनवर्स है. दिस इज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. ऐसा एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले एंड दीज टू आर अदर क्वेश्चंस. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन. इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. डोमेन में आपको क्लियर कर पता है that input of root sine, input of square root should be always greater than or equal to 0. और second, sin inverse की वजह से this 2x should belongs to minus 1 to 1. These are the two conditions that we need to solve. Now, this sin inverse 2x is greater than equal to minus pi by 6. Sin 2x should be greater than equal to minus pi by 6. अब हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं तो दैट 2x विल बी ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2. दोनों साइड इनइक्वालिटी में साइन लेना इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज साइन x इज नॉट अ 1-1 फंक्शन. साइन x जो है वो 1-1 फंक्शन नहीं होता है, तो आप ऐसा फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में. बट एट द सेम टाइम ये इनवर्स की बात है. इनवर्स की बात है मतलब ये फंक्शन 1-1 ही है, तो साइन इनवर्स अप्लाई करो या साइन इनवर्स रिमूव करो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो आइडिया इज कि वी आर टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स विद कीपिंग इन माइंड दैट दिस इज अ 1-1 फंक्शन. तो x will be greater than equal to minus 1 by 4 and this gives me x belongs to minus 1 by 2 से plus 1 by 2. We have to merge them together और इन दोनों को combine करेंगे तो the final answer will be minus 1 by 4 to 1 by 2. What we can also do here is कि sin inverse 2x is greater than minus pi by 6 and less than equal to pi by 2. ये तो clear है because sin inverse है, its maximum value is pi by 2. So what we can do? What we can do? We can say this. But still, this is a good idea. You should always write all the conditions as we have already discussed. We should always write all the conditions side by side. Functions में domain में जब पढ़ाया था तो बोला सारे condition आपको side by side लिखने चाहिए. Now let's move to second question. Second question में we have sin inverse और sin inverse का जो input होगा mod of x minus 1 minus 2 that must belongs to minus 1 to plus 1. Sin inverse का वैल्यू minus 1 से 1 के बीच में होता है. Now what do we do? Slowly we will go to x. Add this 2 in all three parts. That will give me 3 and that will give me 1. मॉड रिमूवल आपको आता है. मॉड x का वैल्यू अगर a पॉजिटिव से b पॉजिटिव है तो दैट नंबर will belong to a to b close interval because equality is also there. यूनियन उसका नेगेटिव पार्ट 1 से 3 का नेगेटिव पार्ट इज -3 to -1. क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? द आइडिया इज कि mod x belongs to a to b, then this implies that x belongs to a to b तो होगा ही, साथ में उसका नेगेटिव -b to -a provided a and b are positive. This is the concept that I have chosen. Next, so what about x? तो x belongs to हर जगह ये -1 जाएगा उधर तो +1 हो जाएगा. That gives me -2 to 0 union 2 से 4 and that is the domain. Let's go to the third question. Third question में क्या है? Third question में we have cot inverse and cos inverse. Cot inverse में there is no problem because cot inverse का input can take any value.
कॉट इनवर्स का डोमेन R होता है, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स इज R, मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो कॉट इनवर्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूट का इनपुट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड इज कॉस इनवर्स, एंड वी नो दैट कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का रूट should lie between -1 and 1, and at the same time root का input है that is x square plus 3x plus 1 should be greater than equal to 0. I should have written them side by side as I always tell you. जगह नहीं इसलिए मैनेज कर लेते, but not a good idea. आपको मैनेज नहीं करना है, you have to plan so that everything is on the same line. Now, first one is very simple, and that gives me x is greater than equal to -3. Nothing to worry about. Second part की बात करते हैं। ये रूट का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इसका वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता। It has to be greater than 0, and so it will be 0 to 1. I can also call it less than 1, because let me show you something. अगर रूट x belongs to -1 to 1 है, it implies that root x is like this. अब रूट x पॉजिटिव है तो -1 से बड़ा ऑलवेज होगा, तो देयर इज नो नीड टू राइट, सो सिंपली व्हाट वी गेट, रूट x इज लेस देन इक्वल टू 1. एंड थर्ड पार्ट ये ऑलरेडी है अपने पास, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय ड्रॉइंग द नंबर लाइन, वो करते हैं। नाउ दिस विल गिव यू, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो विल बी अगेन 0 to 1. आइडिया इज कि स्क्वायरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो कॉन्सेप्ट ये है कि वी कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी without any problem if both the sides are independently positive. Independently what बहुत important है। We can also square on both the sides of inequality if both sides are of inequality are negative independently, but inequality का साइन चेंज हो जाएगा, और एक साइड पॉजिटिव हो और एक साइड नेगेटिव हो तो there is no need to square, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ हम लाइक ऑलरेडी इनइक्वालिटी में डिस्कस कर चुके हैं। Now, what we have is this person is saying कि भाई greater than equal to 0, this is saying greater than equal to 0, but साथ में less than equal to 1, तो ये तो अपने आप हैप्पी हो गया। अब हमें ये सॉल्व करना है, that is x square plus 3x plus 1 is greater than equal to 0 and less than equal to 1. इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके रूट्स होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज -3 प्लस रूट 5/2 एंड -3 माइनस रूट 5/2. These are the roots. साइन यूज करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा. वी नीड पॉजिटिव, मतलब वी नीड दिस पार्ट. सेकेंड पोर्शन इज टेलिंग मी दिस, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. 1 1 कैंसिल. फिर से विड्रॉ नंबर लाइन एंड रूट्स आर, पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ इट, 0 एंड -3. साइन लगाया तो प्लस माइनस प्लस, वी नीड दिस पोर्शन. At the same time, we have this. So now finally what we have is 1 condition, 2 condition and 3 condition. इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा that would be the answer. And the common portion कैसे पता करेंगे? By taking common of all these. How come? See, -3 एक नंबर है. -3 minus root 5/2 will be something here. -3 minus root 5/2, -3 plus root 5/2 यहां होगा and 0 यहां होगा. तो I have marked all the numbers. Now one person is telling me it has to be greater than equal to -3. Greater than equal to -3. Second is telling me minus infinity से this close union this to this, देखना. And third is saying -3 to 0.
what do you see is the common part? इसमें common part क्या दिख रहा है आपको? So I can see the common part is this portion and this portion. मतलब the answer is this to this union this to this. That is your answer. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में इफ यू सी तो cos y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1. अब आइडिया इज वेरी सिंपल. ईदर यू से कि भाई y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 and then apply the condition that x square upon x plus 1 should lie between minus 1 and 1. Or simply from here also, भाई cos y है, left hand side is minus 1 to 1, so right hand side should also be equal to minus 1 to 1. That is simple. Now you have to solve these two inequalities and get the answer. First वाली inequality की बात करते हैं, x square upon x plus 1 plus 1 greater than equal to 0. एंड सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड रिमेंबर यू कैन नॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऑन बोथ द साइड्स. आप दोनों साइड एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो कि एक्स प्लस 1 पॉजिटिव है या निगेटिव है. हाँ, एक पॉइंट है कि भाई एक्स प्लस 1 इज नॉन जीरो, दैट इज फॉर श्योर बिकॉज दैट लाई इन द डिनोमिनेटर. नाउ सॉल्विंग दिस आई विल गेट एक्स स्क्वायर plus x plus 1 upon x plus 1. This gives me x square minus x minus 1 upon x plus 1. नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो न्यूमरेटर का कोई रूट नहीं आएगा. There is no root of numerator, only denominator. On sign this, हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये. अब अगर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड. नहीं तो गो टू द बेसिक मैथमेटिक्स, इनइक्वालिटी का वीडियो देखो, उसमें वेवी कर्व टेक्निक होती है. दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग हियर. एंड सेकेंड वाले में न्यूमरेटर से रूट निकालोगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2. मतलब 1 माइनस रूट 5 बाई 2 एंड 1 प्लस root 5 by 2 plus minus plus and that is the portion. इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा along with x is not equal to minus 1 is going to be your answer. So these are the 4 questions. Now we are going for question number 5, 6 and 7. आप practice करो. I am going to the next screen. Again now we have question number 5. Question number 5 में cos inverse x, cot inverse x and cosec inverse x, we have to find the domain. Question number 5 में if you see तो cos inverse x का डोमेन -1 to 1, cot inverse x का डोमेन r and cosec inverse x का डोमेन -infinity to -1 union 1 to infinity. इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है. थिंक ऑफ इट. अभी लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने नंबर लाइन बना करके इंटरवल्स का कॉमन पार्ट निकाला था, दैट इज द सेम वे वी कैन यूज हियर. और इफ यू सी दिस इज सेइंग -1 to 1 एंड दिस इज टेलिंग यू -1 to 1 के बाहर. साइन इनवर्स cos इनवर्स x है तो x शुड बी बिटवीन -1 and 1 और cosec इनवर्स भी है तो x शुड बी आउटसाइड -1 and 1. One person is telling between AB, other person is telling me outside of AB. So what should I do? I can take A and B exactly. And so I can say x belongs to simple number -1 and +1. These are the only two numbers which are possible, which are in all three intervals. बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं. और ये कर्ली ब्रैकेट है. It doesn't mean कि -1 to 1. It means exactly -1 and exactly +1. मतलब there are only two numbers which are there. अब इसमें आप रेंज भी फाइंड कर सकते हैं. एक बार 1 पुट करके फाइंड कर लो वैल्यू क्या आएगा, -1 पुट करके फाइंड कर लो वैल्यू क्या आएगा. 6th क्वेश्चन में वी हैव द कंडीशन दैट साइन इनवर्स log x base 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि log का इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव. साइन इनवर्स की बात है तो साइन इनवर्स का इनपुट शुड बिलोंग टू -1 to 1.
और log का इनपुट है तो दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0. दैट इज these are the three conditions, एक log के लिए, एक sin inverse के लिए और एक log के लिए. Then I am going to solve this. Sin inverse greater than 0 है, मतलब log x should be greater than sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा. दोनों साइड साइन अप्लाई कर दे. This is telling you -1 to 1. This is telling you 0 to infinity, 0 to whatever. If I merge these two, I will get log x base 2 belong to 0 to 1. दोनों का कॉमन पार्ट. दोनों को पूरा पूरा सॉल्व करके कॉमन लेने से अच्छा है जैसे जैसे सिमिलर टर्म्स मिलते जाएं उनको ग्रुप करते जाएं. नाउ x will be 2 power 0 to 2 power 1. And this is telling you कि x greater than 0 है तो ये तो already happy and that is the answer. So that is your question number 6. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. 7th क्वेश्चन में रेडिकल साइन है, रूट है और रूट का इनपुट शुड बी व्हाट? रूट का इनपुट शुड बी ग्रेटर दैन 0, एक्चुअली ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. नाउ cos इनवर्स x ग्रेटर दैन 2 sin इनवर्स x, ये हमें सॉल्व करना है. दिस इज द इनइक्वालिटी दैट वी हैव टू सॉल्व. Now we have two ideas. एक जो अपना बेसिक आइडिया था उसका यूज करो और सेकंड ग्राफ का यूज करो. पहले ग्राफ का यूज करते हैं जरा. cos इनवर्स x का ग्राफ होता है समथिंग लाइक दिस. अप टू पाई, दिस इज 1, दिस इज -1, 0 एंड पाई बाय 2. एंड साइन इनवर्स x का ग्राफ -π/2 से +π/2 में. लेकिन 2 साइन इनवर्स x है तो वो भी पाई तक पहुंच जाएगा और -π से स्टार्ट होगा. सो दैट इज समथिंग लाइक दिस. नाउ दिस एंगल इज नॉट 45. ये एंगल 45 नहीं रहा बिकॉज इट इज 2 साइन इनवर्स x. स्ट्रेच कर दिया. तो व्हाट वी नीड इज ब्लू ग्राफ. ओके, कलर भी चेंज कर देता हूं मैं आपको. ब्लू वाला ग्राफ ब्लू फंक्शन का है, ब्लैक ग्राफ ब्लैक फंक्शन का है. वी नीड ब्लू ग्राफ इज ग्रेटर दैन ब्लैक ग्राफ. ब्लू इज अबव द ब्लैक, मतलब दिस पोर्शन. ब्लू इज अबव द ब्लैक, ओनली दिस पोर्शन. सो व्हाट वी एक्चुअली नीड, वी नीड दिस पॉइंट. इफ आई कैन फाइंड दिस पॉइंट इट विल बी ऑल डन. और अगर बेसिक आइडिया का यूज करते हैं तो व्हाट वी से कि नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन पे बाउंड्रीज बनाते हैं. बाउंड्रीज याद करो. व्हेन आई टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, द आइडिया वाज कि हर इनइक्वालिटी सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है. कॉमन आइडिया टू ड्रॉ द बाउंड्रीज. बाउंड्रीज बनाने के बाद हर दो बाउंड्री के बीच में चेक करने का कहाँ फेवरेबल है और कहाँ नॉन फेवरेबल है. बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं? बाउंड्रीज बनाते हैं इक्वल करके. सो लेट्स मेक देम इक्वल. तो अगर cos इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स x है, विच विल हेल्प यू हियर ऑल्सो. ये भी वही पॉइंट है जहां पे cos इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स x. नाउ टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एंड फाइंड मी द आंसर. पॉज कर लो. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. cos इनवर्स x को आई कैन राइट π/2 माइनस sin इनवर्स. सो 3 sin inverse x equal to π/2. Sin inverse equal to π/6. And so x equals to 1/2. तो देखना 1/2 का साइन इनवर्स निकालोगे तो दैट इज 30 डिग्री. इंटू 2 किया तो 60 डिग्री और 1/2 का cos इनवर्स सीधा सीधा 60 डिग्री होता है. सो दिस पॉइंट इज 1/2. तो 1/2 आ गया बाउंड्री और cos इनवर्स साइन इनवर्स है तो -1 से 1 के बीच में ही रहने वाली कहानी. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द बाउंड्री बाय मेकिंग देम इक्वल. एंड देन हर इंटरवल में चेक करो. 1/2 से 1 में कोई भी एक नंबर फाइंड करो. 1/2 से 1 में लेट्स से √3/2. ऐसा गंदा नंबर क्यों लिया? बिकॉज √3/2 पे हमें दोनों का वैल्यू पता है. √3/2 का cos इनवर्स π/6, √3/2 का साइन इनवर्स
पाई बाई 3 इंटू 2 किया 2 पाई बाई 3. पाई बाई 6 माइनस 2 पाई बाई 3 इज नेगेटिव. -1 से 1/2 में कोई नंबर बताओ. -1 से 1/2 में नंबर 0 लेते. कोस इनवर्स 0 is 1. Sin inverse 0 is 0. 1 minus 0 is positive. This is what I have been telling throughout the chapter inequality कि नंबर लाइन बनाएंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे, हर इंटरवल में चेक करेंगे एंड यू गेट द आंसर. आपको कुछ प्लस माइनस का रूल का डिसाइड नहीं करना है बिकॉज सिंपल अलजेब्राइक फंक्शंस नहीं होते हमेशा. ऐसे गंदे गंदे फंक्शंस ही होंगे तो आपको चेक करना ही इज द बेस्ट आइडिया. Now what we actually need is greater than 0 मतलब this portion. So answer is -1 से 1/2. और यहां भी देखो what we need our variable portion is something where blue is greater than the black means we need this portion which corresponds to the x का value this which is -1 से 1/2. So these were some questions related to domain. Next we are going to do something else. अब domain में ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही questions हैं या इतने बहुत टाइप के questions होते हैं. But everywhere the idea is very plain and simple. Write all the conditions side by side and then solve all those inequalities. Inequalities कैसे solve करेंगे? By drawing the boundaries. अब boundary कैसे बनाएंगे? अगर सिंपल 1 वेरिएबल है तो लाइन बनाते हैं, 2 वेरिएबल है तो प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होगा तो क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करते हैं एंड वी डू इट लाइक दैट. तो एवरीवेयर यू विल फाइंड कंडीशंस एंड इनइक्वालिटीज. दैट्स इट. कंडीशन लगाना आपको डोमेन में सिखाया और इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो थ्रू आउट फंक्शंस में भी हमने सीखा, डोमेन में भी सीखा और एक्चुअल इनइक्वालिटी में भी हमने सिखाया.